ایک چڑیا اس جنگل میں آئی ہوئی تھی۔ وہ اپنے ایک پیڑ پر گھونسلہ بنا رہی تھی۔ کالو جی، وہ سامنے چڑیا اس پیڑ پر کیا کر رہی ہے؟ کہیں وہ اپنا گھونسلہ تو نہیں بنا رہی؟ وہاں جلدی جاؤ، اگر وہ گھونسلہ بنا رہی ہے تو اسے روکو۔ جنگل میں دانے کی پہلے ہی بہت کمی ہے۔ آج یہ اکیلی ہے، کل اس کے بچے بھی ہوں گے، سارا دانہ تو یہ چڑیا کا پریوار ہی کھا جایا کرے گا۔ ہم کیا کھائیں گے؟ کالو کوا اس چڑیا کے پاس جاتا ہے۔ چڑیا، تم یہاں اپنا گھونسلہ نہیں بنا سکتی؟ کیوں کوے بھائی، کیا یہ پیڑ سرکشت نہیں ہے؟ جنگل ہمارا بھی ہے، میرا بھی ہے، آپ کا بھی ہے۔ کیا کہا تم نے؟ یہ جنگل میری پتنی کا ہے اور کسی پکشی کو یہاں رہنے کی اجازت نہیں دیتے ہم۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اتنا بڑا جنگل ہے، سب مل کر بھی یہاں رہ سکتے ہیں، پھر لڑائی کیسی؟ مجھے زیادہ چوں پسند نہیں ہے۔ مجھے بھی زیادہ کائیں پسند نہیں ہے۔ جاؤ یہاں سے، بڑا آیا کالا کوا مجھے روکنے والا۔ چڑیا اپنے کام میں لگ جاتی ہے۔ کالو کوا غصے سے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا، میں کون ہوتا ہوں؟ مجھے اس نے کالا کوا کہا۔ اس چھوٹی سی چڑیا کی اتنی ہمت کیسے ہوئی؟ میں دیکھتی ہوں کالو جی، میں اسے جا کر پوچھتی ہوں۔ ہاں، میرا دوست سانپ بھی ہے جو اسے کھائے گا۔ صبح ہونے دو، میں اپنے دوست کے پاس جاؤں گا۔ چڑیا کا گھونسلہ بن گیا تھا، اب وہ اپنا دانہ ڈھونڈنے کے لیے چلے جاتی ہے۔ میں اپنا دانہ ڈھونڈ لاتی ہوں اور آرام سے دانہ کھا کر سو جاؤں گی۔ رات ہو جاتی ہے، کوا اور کوی اپنے گھونسلے میں سو جاتے ہیں۔ چڑیا دانہ کھا کر اپنے گھونسلے میں سو جاتی ہے۔ دوسرے دن صبح سویرے ہی کوا اڑتا سانپ کے پاس جاتا ہے۔ سانپ اپنے بل کے باہر بیٹھا ہوا تھا۔ کوے، تم اس وقت میرے پاس کیا آئے ہو؟ سانپ میرے دوست، میرے پڑوس میں میری چڑیا آ گئی ہے، اس نے اپنا گھونسلہ بنا لیا ہے۔ میں نے اسے منع کیا تو اس نے مجھ سے زبان چلانے لگی تھی، اسے کھا لو جا کے۔ اس نے مجھے کہا، تم کون ہوتے ہو؟ میرے دوست، اس نے مجھے کالا کہا۔ ویسے تم ہو کالے ہی۔ تم جاؤ اس وقت، ابھی تو میرے پیٹ میں جگہ نہیں ہے، میں نے ابھی چوہے کا ناشتہ کیا ہے، آج دوپہر کے کھانے وقت میں آؤں گا۔ کوا واپس چلا جاتا ہے۔ اس چڑیا پہ نظر رکھو، میں اس کا انتظار کرنا ہوگا، میرا دوست دوپہر کے بعد آئے گا اور آتے ہی اس چڑیا کو ثابت ہی نگل جائے گا۔ دیکھو تو کالو جی کیسے اپنے گھونسلے کو پھولوں سے سجا رہی ہے، جیسے اس نے پہلی بار گھونسلہ بنایا ہو۔ سج گیا میرا گھر، سج گیا میرا گھر، سج گیا۔ اب مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا لینے جانا ہے، میں جلدی سے کھانا لے کے آتی ہوں۔ چڑیا اپنے گھونسلے کو سجانے کے بعد کھانا ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتی ہے۔ چلتا مچلتا سانپ بھی آ جاتا ہے۔ کوے، کہاں ہو تم؟ جی سانپ دوست، میں آ گیا۔ وہ دیکھو، آپ کا دوست آ گیا ہے۔ کالو جی اپنے دوست سانپ کو لے کر اس گھونسلے میں جاتا ہے۔ وہ دیکھو سانپ، وہ ہے اس چڑیا کا گھونسلہ، اس کے اندر ہوگی، تم جاؤ اور اسے کھا لو۔ ہاں ٹھیک ہے، میں ابھی جاتا ہوں اور کھا لیتا ہوں، اس چڑیوں کے گھونسلے میں ختم کرتا ہوں۔ پھر وہ سانپ چڑیا کے گھونسلے میں جا کر بیٹھ جاتا ہے، مگر چڑیا تو کھانا لینے گئی ہوئی تھی۔ ارے، مجھے ان پھولوں کی خوشبو بہت پسند ہے، یہ پھول بہت اچھے ہیں، یہ پھول میرے گھونسلے کو خوشبو بہت پسند ہے، گھونسلے کو مہکائیں گے۔ پھر چڑیا دانہ لے آتی ہے، واپس اڑتی ہے۔ چڑیا بہت خوش تھی کیونکہ اس نے آج اپنا گھونسلہ بنا لیا تھا اور سجا بھی ہوا تھا۔ تم کون ہوتے ہو؟ چڑیا ایسے شور مچانے لگ جاتی ہے۔ تم کون ہوتے ہو؟ گھونسلے سے پیچھے ہٹو۔ چڑیا جلدی سے پیچھے ہٹتی ہے۔ چڑیا میرے پاس آؤ، میں تمہارا گھونسلہ دیکھنے آیا ہوں، بہت سندر ہے۔
ये तुम्हारा घोंसला है, यहाँ से जाओ, यहाँ से भाग जाओ। वहाँ कौवा और कौवी भी आ जाते हैं। अब बोलो, अब बोलो, कल तो बहुत बातें सुना रही थी, अब बोलती क्यों बंद हो गई है? सुबह से फूलों से सजा रही हो घोंसले को, अब बोल के दिखाओ तो, कैसे सांप तुम्हें खाएगा? गंदे हो, तुम सब गंदे हो, मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं दूसरे जंगल चले जाऊंगी, अपना नया घोंसला बनाऊंगी और उसे फिर फूलों से सजाऊंगी। ऐसे कहते हुए चिड़िया वहाँ से चली जाती है। देखो देखो कौवे दोस्त, मेरे होते हुए यहाँ कोई आ सकता है, अब खुश हो मेरे दोस्त? उसे छोड़ो सांप जी, आप इधर आइए, हम आपके लिए दाना लाते हैं। नहीं नहीं, ये फूलों से सजा हुआ बहुत आरामदायक है, मुझे यहाँ पे बहुत आराम मिल रहा है, आज मैं रात यहीं गुजार कर जाऊँगा। ठीक है सांप जी, आपको जैसे अच्छा लगे, जब भूख लगे हमें बता देना, हम दाना ला देंगे। और फिर कौवे अपना दाना लेने के लिए चले जाते हैं। सांप चिड़िया के घोंसले में सो जाता है, रात हो जाती है, कौवा और कौवी भी सो जाते हैं। आधी रात सांप को भूख लग जाती है, तभी हाँ कोई चूहा नहीं था। अब मैं क्या खाऊं? बाहर निकलता हूँ, देखता हूँ क्या है मेरे खाने वाला, अब मैं क्या खाऊं? फिर वो सोते हुए कौवा और कौवी के पेट के ऊपर चढ़ जाता है। सांप जी, आप हमें बता देते, हम आपको दाना ला देते, आप तो हमारे दोस्त हैं ना, आप हमारे ऊपर क्यों? मैं दाना नहीं खाने वाला। सांप ये कहकर उन दोनों कौवों को खा जाता है। ऐसे उन कौवों को सज़ा मिल जाती है। बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है, ऐसे कौवों को सज़ा भी मिल जाती है। धूप और सख्त गर्मी के बाद आज जंगल में आसमान पर बादल आ गए थे, जिन्हें देखकर सब पक्षी बहुत खुश थे, मगर उन्हें ये चिंता भी थी, अगर इस बार बारिश होगी तो उनके घर टूट जाएंगे। चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी आसमान की तरफ देख रही थी। बारिश होने से पहले मौसम तो ठंडा हो जाएगा, मगर मुझे जल्दी जल्दी अपने घर की छत को मजबूत बनाना होगी। चिड़िया ऐसा सोच ही रही थी। उसके पड़ोस में एक कौवा और कौवी रहते थे। कौवी का नाम गोरी भी था। गोरी ने 2 अंडे दिए थे। कालू जी, मैं अंडों पर बैठ बैठ कर बोर हो गई हूँ, आज मेरा दिल करता है मैं बाहर जाऊँ, थोड़ा घूमूं फिरूं, चलें? ठीक है, हम दोनों आज झरने पर जाते हैं और बारिश इंजॉय करेंगे। अगर बारिश हो गई तो झरने के पानी में नहाएंगे, मज़ा आएगा। दोनों कौवे अपने मासूम अंडों को अकेला छोड़कर घर से निकल जाते हैं। चिड़िया को बैठा देखकर दोनों कौवे उसके पास जाते हैं। चिड़िया, हम झरने पर जा रहे हैं, तू भी साथ चल, वहाँ जाकर हमसे खेल, मस्ती कर। नहीं गोरी बहन, मेरे घर की छत टूटने वाली है, मुझे इसे मजबूत बनाना होगा। चिड़िया, जब देखो काम, तुम्हें घर में काम के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? तुम्हारे घर में भी अंडे हैं? मेरी मानो, तुम भी हमारे साथ चलो। नहीं गोरी बहन, मैं जो अपने घर को सुरक्षित बना लूँ, अगर तेज़ बारिश में मेरा घर टूट गया तो मेरे अंडे भी टूट जाएंगे। आप भी अपने घर चली जाओ और अपने अंडों की सुरक्षित करो। चुप कर, काली ज़बान वाली, मेरे अंडों को कुछ नहीं होगा। कालू जी चलो। नहीं, मुझे लगता चिड़िया ठीक कह रही है। कालू जी चलो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, चलो हमें देर हो रही है। फिर दोनों उड़ते हुए चले जाते हैं। रास्ते में चिड़िया को कबूतर मिलता है, जो केले के पत्ते ला रहा था। चिड़िया को देखकर रुक जाती है। कबूतर भाई, क्या ये मैं पत्ते मुझे कहाँ से मिलेंगे? चिड़िया बहन, ये वहाँ पे चश्मे के पास केले का पेड़ है, वहाँ पे जाके ले लो। फिर चिड़िया उस केले के दरख्त के पास ले जाती है, वहाँ से पत्ते तोड़कर ले आती है। अपने घर की छत को मजबूत बनाना था, वो अपनी छत को मजबूत बना ही रही थी। अभी उसका आधा काम रहता था तो बारिश शुरू हो जाती है। पड़ोसी कबूतर भी आ जाता है और चिड़िया की मदद करता है। फिर दोनों मिलकर जल्दी घर की छत को मजबूत बना लेते हैं। कबूतर भैया, मेरे घर में ही रुक जाएं, मेरे पास दाना भी है, हम दोनों एक साथ मिलकर दाना खाएंगे। फिर चिड़िया और कबूतर घर के अंदर बैठ जाते हैं।
कालू कौवा और गोरी उछल कूद के पास एक बड़े पेड़ के नीचे छुपकर बैठे हुए थे। मैंने कहा था ना तुम्हें, चिड़िया ठीक कह रही है, अब इस बारिश में हमारे अंडों को खतरा है। हाँ जी, मुझे भी अंडों की चिंता हो रही है। छोड़ो, कुछ नहीं होता, मौसम एंजॉय करो। चलो मुझे कोई संगीत सुनाओ। तेरी छोटी सी चोंच है, तू कितनी सुंदर है, तू कितनी सुंदर है। कबूतर भैया, उस गोरी कौवी की बच्ची के घोंसले अंडे में ही है। अगर उसका घर टूट गया तो उसके अंडे भी टूट जाएंगे। मुझे गोरी और काले के अंडे चिंता हो रही है। वो बेशरम है, अपने मासूम अंडे को घर में अकेला छोड़कर झरने पर मस्ती कर रहे हैं। कबूतर भैया, मैं जाती हूँ, उसका घोंसला ठाकर ले आती हूँ। तेज बारिश में चिड़िया भीगती हुई कौवे के घर जाती है। उसका घर तेज हवा से झूम रहा था। चिड़िया जल्दी से अंडे उठाती है और बाहर आ जाती है। जैसा ही वो बाहर आती है, उनका घर गिरकर टूट जाता है। शुक्र है मैं आ गई, अगर मैं समय पर ना आती तो इनके घर में अंडे भी टूट जाने थे। चिड़िया घोंसला अपने घर ले जाती है। शाम तक तेज बारिश होने के बाद बारिश रुक जाती है, मौसम साफ हो जाता है, तो वो अपने घर वापस आते हैं। उड़ते उड़ते उन्हें दूर से ही अपना घर टूटा हुआ दिख जाता है। मैं तो लुट गई, मैं तो लुट गई, मेरा घर टूट गया, मेरे अंडे भी टूट गए, अब मैं क्या करूँगी। मेरा दिल तो कर रहा है तुम्हें अभी घर से बाहर निकाल दूँ। कालू जी, मैं तो पहले ही घर से बाहर हूँ, आप क्या निकालोगे। फिर चिड़िया उड़ती हुई घोंसला लेकर आ जाती है। ये लो गोरी बहन, तुम्हारे अंडे सुरक्षित हैं। ये सुनकर कौवा और कौवी हैरान हो जाते हैं। चिड़िया, ये तुमने सब कैसे किया, तुमने कैसे बचाया हमारे मासूम अंडों को। जब तेज बारिश हुई तो मैं तुम्हारे घर से तुम्हारे अंडों वाला घोंसला उठाकर अपने घर ले गई थी। हमें समझ नहीं आती तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करें। वो बहुत खुश थे और चिड़िया के एहसानमंद थे। ऐसे ही वो आपस में अपनी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं।